Hey guys, welcome back to the another video on Commerce Arena. So today I'm here with Indian economic development. So today, first of all, we are discussing 3 units in Indian economic development. We have 3 units. First, development experience and economic reforms since 1991. In this unit, we will study about the condition of India before independence, I mean during British rule, and during 1950 to 1990, and the economic reforms taken in 1991. Second unit, current challenges facing Indian economy. In this unit, we will study about the challenges we are facing today, like poverty, unemployment, and pollution, and power generation, etc. Next, comparative development experiences of India with its neighbors. Means the experiences of India means the comparative study between India and its neighbors, Pakistan and China. Okay. So today we are starting development experience of India. India before independence. Your chapter 1 according to NCERT is India before independence, means pre-independence period. India had an independent economy before the advent of British rule. इंडिया जो थी वो एक इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल से पहले. जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, उससे पहले जो इंडिया था वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी. Though agriculture was the main source of livelihood for most of people, yet the economy of the country was characterized by various kinds of manufacturing activities. वैसे तो जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स माना जाता था लिवलीहुड का. एग्रीकल्चर वॉज मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, मीन्स मोस्ट majority of the population was engaged in agriculture. Yet the economy of country, means country की जो economy थी वो characterized थी by various kinds of manufacturing activities, means manufacturing activities भी बहुत सारी undertake होती थी हमारे इंडिया में. The colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national income and per capita income. Means जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चला था इंडिया में, उन्होंने कभी भी हमारी इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट मींस कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की, मींस कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया. फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट वाज मेड बाय VKRV Rao. VKRV Rao is the person, is the first scientific estimator. Okay, means he has estimated the per capita income first time during the colonial period 1931 to 1932. Agriculture. In pre-independence period, 85% of the population was engaged in agriculture and 15% in manufacturing and service sector. Means 85% of the population in agriculture, as you are seeing in the pie chart, that this blue portion, the population, this 85% is engaged in agriculture, but 15%, this red portion, is engaged in manufacturing and service sector. Main causes of India's agricultural stagnation. What do you mean by stagnation? Stagnation refers to slow growth. Means slow growth. India is growing but very 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 slowly, means crawling, right? Land settlement system. First cause is land settlement system, means introduction of zamindari system. zamindari system को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने. उन्होंने जो हमारी कंट्री थी उसको डिवीज़न किया था और हर डिवीज़न के ज़मींदार्स बना दिए थे. तो जो ज़मींदार्स थे वो पीजेंट से, जो वहाँ पर खेती करते थे,
पीजेंट्स थे, वो जो फार्मर्स थे, उनसे रेंट वसूल करते थे, रेंट लेते थे. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, मीन्स जो कैश क्रॉप्स थी वो ज़्यादा उनको इंकरेज करते थे ब्रिटिशर्स, एंड जो फूड क्रॉप्स थी उनको डिस्करेज करते थे. मीन्स प्रोडक्शन बढ़ाने का था, मीन्स प्रोडक्शन बढ़ जाए किसी तरह से, मीन्स कैश क्रॉप्स encourage करते थे and discouraged food crops. Low level of productivity means टेक्नोलॉजी कम थी. इरीगेशन फैसिलिटीज़ कम थी, इरीगेशन फैसिलिटीज़ की कोई सुविधाएं, मतलब कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, वेल से ही लेते थे फार्मर्स. एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स नहीं थे बिकॉज सब्सिडीज़ नहीं देते थे गवर्नमेंट, तो फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपना पैसा इन चीज़ों में लगाएं, राइट. सो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी का जो लेवल था वो बहुत लो था उस टाइम. देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया could not develop, मीन्स एग्रीकल्चर के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा था. वाई? बिकॉज ऑफ ब्रिटिश. they have not taken any step for the development of India, of our country. At the time of independence, the condition of industrial sector was as follows: deindustrialization or decline of Indian handicraft industries. Means डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी. एज वी ऑल नो दैट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर वेरी पॉपुलर इन एंटायर वर्ल्ड, राइट, बट दे हैव डिस्करेज्ड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. उन्होंने उनको डिस्करेज किया एंड बहुत सारी बंद भी हो गई थी उस टाइम पे. वन साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मीन्स वो रॉ मटेरियल की जो इंडस्ट्रीज थी उनको ही सपोर्ट करते थे. लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मीन्स कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बहुत कम थी. कैपिटल गुड्स होते हैं जो एसेट्स होते हैं हमारे, मीन्स जिनको हम, जो हाई वैल्यू के होते हैं एंड सेवरल ईयर्स तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं, एज यू हैव स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1. लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर मीन्स पब्लिक सेक्टर का ऑपरेशन जो था, मतलब पब्लिक सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत कम था. ब्रिटिशर्स हैड टू फुल मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो ब्रिटिशर्स थे उनके दो मोटिव्स थे जो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था. मीन्स हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को डीमोटिवेट किया था, डिस्करेज किया था. दे वर to reduce India to the status of a mere exporter of important raw material for upcoming modern industries in Britain. Means India को उन्होंने reduce किया था to the status of a mere exporter. Means India को एक exporter बना दिया था, एक major exporter बना दिया था raw material का, important raw material का, अपनी upcoming modern industries, जो ब्रिटेन में उनकी upcoming modern industries थी उनके लिए. ओके, नेक्स्ट सेकेंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट. उन्होंने इंडिया, उनका मोटिव क्या था दूसरा, कि उन्हें इंडिया को स्प्रॉलिंग मार्केट, इंडिया को एक स्प्रॉलिंग मार्केट बना दिया था फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए जिनके लिए वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से. मीन्स इंडिया रॉ मटेरियल कहाँ से एक्सपोर्ट करते थे? इंडिया से, अपनी ब्रिटेन की, अपनी होम कंट्री की इंडस्ट्रीज़ के लिए. एंड जो वो गुड्स बनाती थी वो कहाँ लाते थे? इंडिया में सेल करने के लिए. ओके, सो दे टुक द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया to their home country for their industries and manufactured goods there, and then imported the goods into our country for selling them in our market. Okay, so these twofold motives are very important, so learn them very nicely. Next, foreign trade. India was a trading nation before the advent of colonial rule. Means colonial rule से पहले एक trading nation था, India एक trading nation था. But due to restrictive policies adopted by the colonial government ने कुछ ऐसी restrictive policies, कुछ ऐसी policies लगा दी
जिससे कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड थी वो एडवर्सली इफेक्ट हुई, मीन्स कम होने लगी. फॉरेन ट्रेड कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स जब हमारी इंडिया को फ्रीडम मिली, कब मिली थी? 15 अगस्त 1950. ओके, सो फॉरेन ट्रेड उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी हमारी फॉरेन ट्रेड की? दे वर एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मीन्स वो प्राइमरी प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल था वो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करते थे एंड इम्पोर्ट करते थे अपनी होम कंट्री में, और वहाँ से हमारी कंट्री में इम्पोर्ट करते थे अपने फिनिश्ड गुड्स जो उनकी होम कंट्री बनाती थी, वेरी चीप क्वालिटी गुड्स. देन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ऑन फॉरेन ट्रेड, मीन्स फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिश का मोनोपोली कंट्रोल था. फॉरेन ट्रेड सब मैनेज कौन करता था? ब्रिटिशर्स. द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, हमारी वेल्थ वो लोग बहुत बुरी तरह से बहा रहे थे, वी कैन से. ओके, बहा रहे थे, ड्रेन कर रहे थे. लाइक जो भी हमारा वो लोग ट्रेड करते थे अपने प्रॉफिट के लिए, तो कुछ भी सरप्लस उनका बचता था तो वो अपने वॉर में कोई एक्सपेंसेस हो गए, यानी कोई भी एक्सपेंसेस होते थे उनके, तो वो उससे रिकवर करते थे, वो उससे मीट करते थे वाले एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, डेमोग्राफिक कंडीशंस. डेमोग्राफिक कंडीशंस includes like birth rate, death rate, infant mortality rate, life expectancy, etc. So first census of population of British India was made in 1881. 1881 में फर्स्ट सेंसस हुआ. उस टाइम पे फीचर्स क्या थे? बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत हाई था, मीन्स बहुत लोग मरते थे एंड बहुत लोग बर्थ रेट भी बहुत हाई था, मीन्स पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी बट डेथ रेट भी बहुत था. वाई? बिकॉज इनएडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ थी. फर्स्ट ऑफ ऑल हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ज़्यादा था. हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? मीन्स जो जितने भी बच्चे पैदा होते थे, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते थे, वो जन्म लेते ही कुछ ऐसे, मतलब काफ़ी सारे ऐसे होते थे जो तभी मर जाते थे जन्म लेते ही. सो देयर नंबर इज 200, देयर नंबर वॉज 218 पर 1000. मीन्स 1000 में से 218 बच्चे मरे हुए पैदा होते थे. इट्स वेरी पैथेटिक कंडीशन. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो थी. मीन्स कितने एज तक एक पर्सन जिएगा, वो 32 ईयर्स थी उस टाइम पे. बट इस टाइम पे इफ़ वी कंपेयर, देन इस टाइम पे है 62 पॉइंट समथिंग. सो it's almost half. Low overall literacy rate, means overall literacy rate जो था वो 16% से भी कम था. मीन्स पूरे इंडिया में 16% लोग लिटरेट थे, मीन्स एजुकेटेड थे. लो फीमेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट भी लो था. फीमेल लिटरेसी रेट दैट इज 7%. Can you even imagine the situation? Next, low standard of living, means standard of living बहुत low था because extensive poverty थी. poverty बहुत थी उस टाइम पे. means a huge majority of population was under the poverty line. inadequate public health facilities, means public health facilities जो थी वो बहुत inadequate थी. health facilities बहुत कम थी, इसीलिए death rate ज़्यादा था. राइट. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशन मीन्स जो पीपल थे, जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो डिफरेंट सेक्टर्स में. हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर. सो जो पॉपुलेशन थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ था. प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत पॉपुलेशन जो थी वो एंगेज्ड थी. ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, मीन्स जो रीजन्स थे हमारी इंडिया के, हमारी कंट्री के जो रीजन्स थे उनमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिफर था. मीन्स कहीं एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग एंगेज थे, कहीं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग एंगेज थे. ओके, सो इट इज़ लाइक दैट. इंफ्रास्ट्रक्चर. Under infrastructure we include all those industries and services which are used to develop other industries. Means जो industries को develop करने में use किया जाती हैं, जो industries या services use की जाती हैं, उनका infrastructure के अंडर आती हैं वो.
So development of infrastructure during colonial rule was not to provide better facilities. Means इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने, बट नॉट टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, नॉट टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू जनरल पब्लिक, बट सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट ओनली. मीन्स ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता था? रेलवे, रोड्स, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, communication system. There were many crucial economic challenges that we have to overcome for economic development. Okay, so first of them is economic dependence, increasing dependence of population on agriculture. Means जो population थी 85% of the population, as we studied earlier, that 85% of the population was engaged in agriculture. So it is not good for our economy, as there are 3 sectors. So population must be divided in all 3 of them proportionally, right? So this is one of the most crucial challenge for India. Second, destruction of Indian handicrafts. Handicrafts means जो handicraft means जो मतलब crafts बनाते हैं, जो small industries, हाथों से जो हम लोग कुछ crafts वगैरह बनाते हैं, so they are known as handicrafts. Okay, so destruction means during the colonial period, our Indian handicrafts were destroyed. Right, so it was also the most crucial economic challenge, as Indian handicrafts were famous in the entire world. Third one, widespread poverty. Means poverty, many people were poverty stricken. Means जो गरीबी थी वो बहुत फैल गई थी. Means majority of the population were below poverty line. Okay, so it is also a challenge for us. Poor demographic conditions. Means demographic conditions include what? Infant mortality rate, literacy rate, etc. So जब demographic conditions अच्छी हो जाएंगी, so भाई हमारा इकोनॉमी तो डेवलपमेंट होगा ही ना इकोनॉमी का. So this is also a challenge for us. मीन्स लिटरेसी रेट हमें बढ़ाना था, एजुकेटेड करना था लोगों को, जिससे कि वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा मीन्स हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी. ओके, नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन. मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्करेज किया था ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया में. सो वो बहुत इनएडिक्वेट था उस टाइम पे, सो हमें उसको भी एडिक्वेट बनाना था. राइट, Next we have positive contributions made by the Britishers during the colonial period in India. They were self-sufficiency in food grain production. As we have studied that there was commercialization of agriculture in India by the Britishers. So India is self-sufficient in food grain production. Okay, so it is a good measure for India, right? नेक्स्ट, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का बेटर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया था. नेक्स्ट, चेक ऑन फेमाइंस. मीन्स फेमाइंस कम होती थी. मीन्स जब हम सेल्फ सफिशिएंट थे फूड ग्रेन्स में, सो फेमाइंस भी कम होती थी. नेक्स्ट, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी. मीन्स जब ब्रिटिशर्स थे उससे पहले, मीन्स जब ड्यूरिंग द कॉलोनियल, मीन्स बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था. Barter system means exchange of goods for goods, right? If one wants horses and another one sugar, then they both were exchanging the goods. But colonial period leads to the shift from barter system to monetary economy. Okay, monetary economy. Next, effective administration setup. Means administration बहुत effective था. एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ध्यान देते थे ब्रिटिशर्स. सो दीज आर द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. ओके,
That's it. If you like the video, hit the like button and subscribe my channel.